Welcome to one and all. We started with C++ board programs and we did number of programs till now. And I hope you all are practicing those programs with compilation because without compilation you have to by heart that program. Okay, तो आप compile करके पढ़ोगे तो आपको सारे steps अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे. Okay, you are not supposed to by heart those things. So you can get it by your own also. आप समझ सकते हो कि इसके बाद में क्या लाइन होगा, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा. So practice each and every program with compilation, then only you will get all the programs easily. So we have to start with Fibonacci series in this class. So I hope you all are knowing the meaning of Fibonacci series, and in board it is asked by two methods. So I'll give you both the method, okay, and both the coding. First of all, what is the Fibonacci series? Addition of two previous numbers will give you the next number, and that will give you the series of numbers. Okay, so this series is known as Fibonacci series. Let's see. So we know our starting number, that is 0, and 0 के बाद क्या मिलता है? 1. Okay, so this will be your first number and this is your second number. Okay, 0 plus 1 will give you the next number, that is 1. Okay, अब क्या होगा? 1 plus 1 will give you 2. 2 plus 1 will give you 3. 5 plus 3 will give you 8. Okay, 8 plus 5 will give you 13. 13 plus 8 will give you 21. So in this way we can get till n terms. Okay, ये सीरीज हमें n टर्म्स तक मिल सकता है. सो बोर्ड में ये दो मेथड से ही पूछा है. सो आई एम गिविंग यू बोथ द मेथड्स. सो गो थ्रू दीज मेथड्स एंड प्रैक्टिस इट, एंड बोथ द मेथड्स आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर. लेट्स सी. So this is Fibonacci series, means addition of two previous numbers which will give you the next number. Okay, and you have to start the series with 0 and 1. First aim, write a C++ program to print Fibonacci series for n terms. एक common program होगा जिसमें आपको ये program में n terms print करना है. n terms means what? You have to ask with user that enter the number. मतलब आपको कितने टर्म्स का सीरीज चाहिए. n की जगह पे 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो ये एक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूजर से नंबर लेना है कि आपको वो सीरीज में कितने टर्म्स चाहिए. और एक प्रोग्राम बोर्ड में पूछा है जिसमें पहले से ही टर्म्स दिया हुआ है कि यू हैव टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज फॉर 11 टर्म्स, 13 टर्म, 14 टर्म, ऐसे पहले से लिखा हुआ है. ओके, सो विल फर्स्ट डू फॉर n टर्म्स. n टर्म्स आपको समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट वाला बाय डिफॉल्ट आ जाएगा. सो here we are starting with this program. So this is your coding. Okay, so I'll give you this coding with compilation. So I am giving you with compilation first. See here, पहले आपको compilation बताती हूँ जिससे आपको coding समझना बहुत simple हो जाएगा. ये n terms वाला है. Okay, so हमें क्या करना है? एक सीरीज स्टार्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एंटर द लेंथ ऑफ सीरीज. सपोज मैंने यहाँ पे एंटर किया 7. ओके, मैंने n का वैल्यू 7 एंटर कर दिया. दैट इज आई वांट टोटल 7 टर्म्स इन माय सीरीज. f0, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, f0, f1 एंड f2. f0 सबसे छोटा, उससे नेक्स्ट नंबर जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो f0, सेकेंड नंबर इज f1, थर्ड वन इज f2. Okay, we are using in this for loop, okay, to increment a number, and n is your length of the series. So मैंने starting के दो numbers पहले से दिए हैं, that is f0 is 1, f0 is 0 and f1 is 1. ये दो number मैंने पहले ही दिए हैं. You can mention f0, f1, f2 as abc also, pqr also. Okay, so first I will print cout f0 and f1. You can see I mentioned here comma also, so that सारे नंबर के बाद में मुझे कॉमा वहाँ पे प्रिंट हो.
Okay, you can write or compile this program in any software. You can check the coding. So सी आउट में हमें क्या मिलेगा, F0 का वैल्यू क्या है 0, फिर क्या प्रिंट होगा कॉमा, फिर F1 का वैल्यू इज 1, देन अगेन वी आर हैविंग अ कॉमा टू प्रिंट. ओके, देन वी आर हैविंग अ फॉर लूप हियर. नाउ यू हैव टू गेट द मीनिंग. ये फॉर लूप आपका 1 से मैं यहाँ से कंपाइलेशन स्टार्ट करती हूँ. इन फर्स्ट फॉर लूप I is equal to 1, you can see 1 compared with n minus 2. minus 2 मैंने क्यों किया है, because we already given these two numbers. हम यहाँ पे दो नंबर दे चुके हैं. okay, 0 and 1. so I subtracted these two numbers, that is n minus 2. okay, so meaning of for loop is for, मैं जस्ट यहाँ पे f लिख रही हूँ. I तो 1 है यहाँ पे, I is equal to 1 से स्टार्ट हो रहा है. फिर क्या होगा, ये 1 कंपेयर होगा n minus 2 से. तो n minus 2 is by default 5 only, क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 एंटर किया है. 7 minus 2 will give you 5. okay, and next number will be stored by default. so आपको अब ये सब का अगर मीनिंग समझना है, फॉर लूप कैसे रन होता है, तो ये मैंने सब सिंटैक्स C++ चैप्टर में सिखाया है. सो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज. ओके, सो सी हियर. सो दिस इज ट्रू, 1 is compared with 5, it is true. so what we have to do, you can see here F2. F2 is the total of F0 and F1. F0 और 1 F1 क्या है, 0 plus 1 will give you 1. F2 का वैल्यू क्या हो गया 1. so as soon as you will get the value of F2, print that F2. so ये हमारा फाइनल आउटपुट है. ओके, सो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आफ्टर दिस 1. F2 का वैल्यू क्या है 1 एंड कॉमा, इसके बाद कॉमा प्रिंट होगा. ओके, नाउ यू कैन सी अब क्या है. अब मैं यहाँ पे पहले आपको मेंशन कर देती हूँ. द फर्स्ट वैल्यू वाज F0, second was F1 and third one was F2. ओके, सो जैसे ही आपने F2 को प्रिंट किया, आपको क्या करना है F0 में कौन सी वैल्यू को पुट करना है, F1 की. ओके, सो आई विल पुट इन F0 में क्या आ जाएगा, F1 की वैल्यू. F1 क्या है मेरा, F1 is 1, तो F0 की वैल्यू हो गई 1. देन F1 की वैल्यू will be the value of F2. F2 की वैल्यू क्या मिली थी मुझे 1. ओके, सो ये मिला. फिर अगेन I have to go to this for loop. so this will be my second compilation. so this time value of I will be 2 by using this I++. so 2 compared with 5 and I is equal to 3. ये नेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट. ओके, एज वी आर हैविंग दिस I++. और ये तो फर्स्ट टाइम में ही सिर्फ होता है रन. ओके, फिर उसके बाद के लूप में सिर्फ सेकेंड और थर्ड पार्ट ही फॉर लूप का रन होता है. सो दिस इज ट्रू. सो आई एम गिविंग यू जस्ट द कंडीशन पार्ट ऑफ फॉर लूप. F2 विल बी, तो अब हमारा F2 क्या होगा, F0 plus F1 according to the given syntax. okay, so F0 plus F1, what it will be, 1 plus 1. clear, so it will give you 2. okay, तो F2 क्या हो गया 2. अब जैसे ही हमें F2 का वैल्यू मिला, क्या करना है, उसको हमें प्रिंट करना है. so I will print, क्या मिलेगा, F2 वैल्यू that is 2 then कॉमा. ओके, देन फिर से मुझे वैल्यू शिफ्ट करना है. अभी कैसे, F0 में मुझे F1 की वैल्यू कॉपी करनी है. F0 में F1 की वैल्यू क्या है लास्ट 1, तो F0 में क्या हो जाएगी 1 की वैल्यू 1 आ जाएगा. एंड F1 में F2 का वैल्यू. ओके, तो यू कैन सी हियर F2 का वैल्यू क्या है 2, वो मुझे F1 में कॉपी करना है. सो दिस इज आवर सेकेंड कंपाइलेशन. इन थर्ड, value of I will be 3 by using this I++.
So 3 compared with 5. So this is true. Okay, true है तो क्या फाइंड आउट करेगा वो, F2 is equal to F0 plus F1. F0 और 1 क्या है अब, 1 plus 2 which will give you 3. Okay, अब जैसे ही हमें 3 मिला, हमें क्या करना है, वो 3 को प्रिंट करना है. So we have to print this 3 and कॉमा प्रिंट होगा. देन ट्रांसफर दोज वैल्यूज, दैट इज F0 में कौन सी वैल्यू होगी, F1 की. F1 की लास्ट वैल्यू क्या है, आप देखो 2 है. F0 विल बी 2 एंड F1 विल बी 3. ओके, F1 क्या हो गया, 3. So this is our third compilation. Now the fourth one is for 4 compared with 5 true. So what we'll get, F2 is equal to F0 plus F1, that is 2 plus 3. Okay, which will give you 5. तो जैसे ही हमें 5 मिलेगा, F2 का वैल्यू मिलेगा, हमें प्रिंट करना है. सो ये प्रिंट हो गया 5. देन क्या हो जाएगा, F0 में क्या आ जाएगा, F1 का वैल्यू, दैट इज 3 एंड दिस इज योर 3 एंड F1 में F2 का वैल्यू, that is 5. Okay, so in this way you have to compile. So in our next 5th compilation for 5 compared with 5, 5 compared with 5, this is true. ट्रू है तो हमारा F2 क्या हो जाएगा, अब F2 will be F0 plus F1, that is 3 plus 5 will give you 8. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 8 लिख रही हूँ. जैसे ही 8 मिलेगा, हमारा 8 प्रिंट होगा. ओके, और F0 की वैल्यू हो जाएगी F1 की वैल्यू, दैट इज 5 एंड F1 विल बी 8. ओके, नाउ यू कैन सी, अभी हमारा I क्या हो जाएगा, 6. तो 6 कंपेयर्ड विथ 5, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा और हमारा ये फॉर लूप स्टॉप होगा. ओके, सो नाउ कैलकुलेट हाउ मेनी टर्म्स यू गॉट, 1 2 3 4 5 6 7. सो एक्चुअल में आपने एंटर क्या किया था, 7. तो आपको टोटल 7 टर्म्स मिल गए. ओके, सो दिस प्रोग्राम इज करेक्ट. इफ यू वांट टू क्रॉस चेक इट, यू कैन enter in any software, TC++ or VC++, you can check the coding, but learn the program by compilation only, जिससे आपको steps clear होंगे और वो steps step by step आपके दिमाग में बैठ जाएंगे. ओके, सो आपको वो ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करना पड़ेगा, just you have to do 1 or 2 compilation, आपको प्रोग्राम आ जाएगा. Clear? So this is the meaning of Fibonacci series and the way in which way you have to print. So ये किस लिए था, प्रोग्राम फॉर n टर्म्स. अगर आपको टर्म्स मेंशन नहीं किए हैं और यूजर से आपको वो टर्म्स लेना है, सो दिस इज योर कॉमन प्रोग्राम. कॉमन मीन्स जिसमें आप कितना भी टर्म्स के लिए कर सकते हो. ओके, सो दिस वाज योर प्रोग्राम फॉर n टर्म्स. नाउ द सेकंड वन और सेकंड एम इज राइट अ C++ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज फॉर 15 टर्म्स. तो ये भी बोर्ड में ही पूछा हुआ है, फॉर 15 टर्म्स. तो यहाँ पे n मेंशन है, सो वी आर नॉट सपोज टू यूज दैट वेरिएबल n. ओके, सो लेट्स सी कैसे इसको करना है. अभी ये आपका कोडिंग है. सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक n नहीं लिखा है, जो हमने एक n वेरिएबल लिया था वो मैंने नहीं लिखा है. और जो हमने यहाँ पे एंटर किया था, क्या, एंटर द लेंथ ऑफ द सीरीज एंड सी इन n, ये भी नहीं लिखा है. क्यों? क्योंकि इसमें तो पहले से मेंशन है दैट वी हैव टू डू द प्रोग्राम फॉर 15 टर्म्स. ओके,
सो आप उसके बाद दे सकते हो ये F0 एंड F1 जैसे मैंने ये कोडिंग में लिखा था, सेम वे इट इज. ओके, सेम वे द सी आउट printing also you can see this. Now the total numbers you want is 15 terms. Okay, 15 terms आपको चाहिए. और आप तो सोचोगे मैंने यहाँ पे 13 क्यों लिखा है? Why it is 13? So I just put n का वैल्यू in this program. n का वैल्यू कितना था? 15. तो 15 minus 2 will give you 13. तो आपको अगर 15 वैल्यूज के लिए फिबोनाची सीरीज चाहिए तो आपने ये स्टार्टिंग में तो 2 टर्म्स पहले से ही दिए हैं. ओके, तो यहाँ पे ये 13 हो जाएगा. 13 प्लस 2 इज टोटल 15. अभी हमने कंपाइल किया, बस उसी फॉर लूप में n-2 में मैंने n की वैल्यू 15 रखी. सो आई गॉट द वैल्यू एज 13. ओके, बाकी सारा स्टेप सेम है. जस्ट अगर आपको कभी भी लेंथ मेंशन किया है, दैट इज यू हैव टू डू द फिबोनाची सीरीज फॉर 7 टर्म्स, 9 टर्म्स, 11, 14, 15, तो यू आर नॉट सपोज टू मेंशन योर सी आउट एंड सी इन. ओके, एंटर द लेंथ ऑफ द सीरीज, सी इन एन, ये आपको मेंशन ही नहीं करना है, ना तो यहाँ पे आपको n-2 लिखना है. दैट टाइम डायरेक्टली आप जो n का वैल्यू है, इट मे बी 7, तो 7-2 विल गिव यू 5, तो यू हैव टू एंटर हियर 5. ओके, एंड बाकी का पूरा कोडिंग सेम होगा जैसे अभी हमने वो n टर्म्स के लिए कंपाइल किया, सेम इट इज. जस्ट यहाँ पे आपको पहले से ही टर्म्स मेंशन किया है कि आपको फिबोनाची सीरीज में कितने टर्म्स चाहिए. ओके, सो इफ यू विल कंपाइल इट इन द सेम वे 15 टाइम्स, सो यू विल गेट टोटल 15 टर्म्स. ओके, so this is the way it is asked in board, and sometimes it is asked for 13 terms only. यहाँ पे 15 लिखा है ना, 13 terms. अगर यहाँ पे 13 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा by default? 13 minus 2 that is 11. Okay, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा. But confirm you will get all the 13 terms in your final output. So this is the program for Fibonacci series which will give you 5 marks in board. So please practice it with compilation so that you can learn in easiest way. Okay. So the next program is for to convert temperature. Okay, ये भी board में number of times पूछा है, with simple way also, basic way also, and with class also. So our next program for board program for C++ board program will be this conversion of temperature. Till that time, practice these number of programs with compilation, and if you are having any doubt, please mention through comment or through email. Okay, I will help you completely. So till that time, practice it more and more. Okay, thank you class.